دعا اور چال چلن، یسوع کی تمثیلات۔ بچوں، یسوع نے انسانی بدن میں رہتے ہوئے بیماریوں سے شفا دینے، زوردار نشان ظاہر کرنے کے علاوہ یہ بھی کیا کہ ارد گرد کے لوگوں، اپنے پیروکار شاگردوں، مخالفت میں سرگرم شریعت کے عالموں اور فریسیوں تک کو اپنے انداز سکھائے۔ آج ہم یسوع کی سنائی تمثیلوں کے معنی سیکھیں گے۔ یسوع نے اکثر تمثیلوں کے ذریعہ خدا کے روحانی اصول بیان کیے تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیں پہلے دیکھتے ہیں یسوع نے دعا میں کیا رویہ اپنانے کو کہا۔ اور خدا کے ہم سے وعدے کیسے ہیں۔ دعا کے متعلق یسوع کی تمثیل۔ جی لگا کے دعا کی جائے۔ لوکا 11 باب 5 سے 10 آیت۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ بچوں، یسوع نے ایک دوست کے طرز عمل کو تمثیل کے طور پر پیش کیا۔ وہ آدھی رات کو روٹی مانگنے آیا۔ یسوع ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہم بے قرار ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری طلب ضرور پوری کرتا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لگاتار اور دل سے نکلی دعا اصل کنجی ہے۔ ایک اور تمثیل بھی دعا کے متعلق ہے۔ دعا سے منہ نہ موڑیں۔ لوکا 18 باب 1 سے 5 آیت۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ لوکا 18 باب 6 سے 8 آیت۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔
तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? बच्चों, इस तमसील में यसू ने हमारी अकल बेदार करते हुए ये समझाया, इंसान की दुआ का तसलसल खुदा के दिल पर क्या असर करता है। पहली तमसील में यसू ने एक दोस्त की बात की थी जो आधी रात को रोटी मांगने आदम का। और इस बार एक बेवा किसी काजी से इंसाफ मांग मांग कर उसका नाक में दम कर डालने को थी। अगरचे शुरू में वो दोनों बेजार हुए और फरियादी की बेशर्म गुस्ताखी और एक ही रट लगाए जाने की परवाह नहीं की, मगर बाद में उनकी फरियाद सुननी ही पड़ी। तो बच्चों, यसू ने हमें यही समझाया है, हमेशा दुआ करते रहें और कभी बददिल ना हो। हमारी दुआओं में बेताबी हो, खुदा हमारी फरियाद का जवाब जरूर देगा। यसू ये समझाना चाहता था कि हमारी तवज्जो इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि क्या खुदा ने हमें इंसाफ दे दिया, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या हम यकीन और ईमान से खुदा के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दुआ तो कर ली मगर भूल गए कि मांगा क्या था। यसू ने हमें दुआ में खास रवैया सिखाने को एक और भी तमसील समझाई। दुआओं में तर्जे अमल, लूका 18 बाब 9 से 14 आयत। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही के दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बच्चों, मायूसी से दूर रहकर दिली बेताबी से दुआ मांगने के ये 3 अंदाज यसू ने मिसालें देकर हमें समझाए और बताया कि खुदा वक्त मुकर्ररा पर हमें जरूर नवाजेगा। हमें दुआ के दौरान खुदा के हजूर अपनी पाकबाजी की तशहीर नहीं करनी चाहिए और न ही अपने कारनामे सुनाने चाहिए, बल्कि आजिज़ी और शर्मसारी से अपने गुनाहों को मानकर उनसे तौबा करनी चाहिए। क्योंकि खुदा के रूहानी असूल के मुताबिक जो कोई अपने आप को झुकाएगा वही सरफराज किया जाएगा। ये अलग बात के खुदा मगरूरों को जेर कर देता है। बच्चों, यसू ने हमें दुआ में कौन से अंदाज अपनाने की तलकीन की? नंबर 1, दुआ में तसलसल। नंबर 2, बेदिली से इज्तनाब। नंबर 3, आजिज़ाना तर्ज़े अमल। आए अब देखते हैं रोजमर्रा के कामों में यसू हमें कैसा देखना चाहता है। तर्ज़े अमल की तरबियत। नमक की खसूसियत। आए ऐसे तर्ज़े अमल के अंदाज का जायजा लेते हैं जो यसू हमसे चाहता है। बच्चों, क्या आप नमक से वाकिफ हैं?
जब किसी खाने में नमक मिलाया जाए तो खाने का जायका नुमाया होकर और लजीज हो जाता है। और खाना जल्द खराब भी नहीं होता। नमक के ख्वास बयान करते हुए यसू ने हमें सिखाया, जब भी कुछ कहने का मौका हो नमक की लज्जत भरी मिसाल मद्देनजर रखें। आपके दाएं बाएं रूठे हुए लोग आपकी खुशतबा फितरत के सबब से सब खुश हो जाएंगे। झगड़ालू और लड़ाई बड़ाई के शौकीन आपकी खुशअतवारी देखकर मारामारी छोड़ देंगे। आपकी मसालहत आमेजी उनको राम कर देगी। बाहम कटा कलामी करने वाली दोनों टोलियां फिर से मिल बैठेंगी। ये सब आपकी तवज्जो और गौर फिक्र की बदौलत होगा। बच्चों, यसू चाहता है हम अपने माहौल पर खुशगवार असरात मुरतब करें। चाहे स्कूल हो या घर, हर कोई हमारी वजह से मिलजुल कर रहे और खुशियां पाए। बिल्कुल नमक की तरह के गोश्त हो या सब्जी, सब में खूब रच बस जाता है और लोगों की तस्कीने तबा के लिए खाने को खूब लजीज बना देता है। चुनांचे यसू ने कहा, मरकस 9 बाब 50 आयत, अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मलाप से रहो। मगर बच्चों, अगर नमक को देर तक जखीरा करके रख छोड़ा जाए तो ये खराब हो जाएगा और इसका जायका भी बर्बाद हो जाएगा। क्या आप फिर भी इसे खा सकेंगे? नहीं। चुनांचे यसू ने कहा, लूका 14 बाब 34 से 35 आयत, नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजादार किया जाएगा? ना वो जमीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। मत्ती 5 बाब 13 आयत, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। बच्चों, ये एक नहायत संजीदा तंबीह है। यसू ने फरमाया था, हम जमीन का नमक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नमक होना हमारी मर्जी नहीं बल्कि हमारी हयात ही नमक है। अगर हम नमक की तरह फाल ना बन पाए, माहौल से टूटे उखड़े रिश्ते जोड़ ना पाए, तो मतलब ये होगा कि हम अपने वजूद में नमक के खवास खो बैठे हैं। यसू ने ऐसे बेकार लोगों का अंजाम बताया कि उन्हें बाहर फेंककर कदमों तले कुचला रौंदा जाएगा, यानी वो जहन्नम में डाले जाएंगे। क्योंकि वो यीशु के लोग नहीं। उनके हिस्सा में यसू की तरफ से बख्शी हुई अबदी हयात नहीं आई। वो ऐसा नमक ठहरे जो बद जायका हो गया, किसी काम के नहीं रहे और इस हालत को पहुँचे कि राहों में फेंके जाएं, कदमों तले रौंदे जाएं। यसू ने हमें ये भी सिखाया है कि हमारे तौर तरीके चिरागे राह जैसे होने चाहिए। बच्चों, रोशनी की राहें कैसी होती हैं? ये बहुत उजली, बहुत ताबनाक होती है। बच्चों, बिजली की लोड शेडिंग के दौरान आप क्या करते हैं? अपनी रोशनी जलाते हैं। क्योंकि अंधेरी जगहों पर हल्की सी रोशनी में भी जिंदगी की सरगर्मियां जारी रखी जा सकती हैं। खाना बनाया जा सकता है, स्कूल का काम भी किया जा सकता है। ये रोशनी ही है जिसकी वजह से खाना पकाने, किताबें पढ़ने जैसे काम ठोकर खाए या दीवार में सर टकराए बगैर चला जा सकता है।
चुनाचे यसू ने रोशनी की उजली और ताबनाक खासियत बयान करके मसीहियों को चिरागे राह बनकर अपनी रोशनी फैलाने की तलकीन की। तर्ज अमल की खसूसियत, तरबियत की रोशनी। यसू ने कहा, मत्ती 5:14 तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो शख्स जिसमें यसू की हयात का अंसर पाया जाए वो राहों को रोशन करेगा, जिंदगी से अंधेरे मिटाएगा और सब पर अय्यां होगा। रोशनी को कहाँ मौजूद होना चाहिए? यसू ने फरमाया, मत्ती 5:15-16 और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मत्ती 5:20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बच्चों, यसू किस लिए हमें रोशन और ताबनाक किरदार का मालिक बनाने का ख्वाहिशमंद है? क्योंकि दुनिया की तारीक अंधेरी राहों में हर कोई कुदरती तौर पर रोशनी की तरफ भागता है। जहाँ भी रोशनी होगी इंसान वहीं रहना चाहेगा। यसू हमारे किरदार में पाकीज़गी की चमक देखनी चाहता है ताकि गिरदो नवाह के लोग खुद ब खुद हमारी तरफ मतवज्जा हो जाएं। हमारे पास आए और पुकार उठे, तो आप यसू के शागिर्द हैं। बिलाशुबा आप तो सब में खास और नुमाया हैं। यसू ने बताया, हमारे यही अंदाज आसमानी बाप का जाहो जलाल जाहिर करेंगे। बच्चों, जब रोशनी जाहिर होती है अंधेरे छट जाते हैं। अगर यसू के सारे शागिर्दों में रोशनी की खसूसियात समा जाएं, तो दुनिया के अंधेरे मिट जाएंगे। दुनिया के अंधेरों से मुराद हर किस्म की बदअमालियां हैं, यानी झूठ, दहशत गर्दी, लूट खसूट और जुल्मो जबर वगैरह। यसू ने खसूसन इस बात पर जोर दिया कि हमारी रास्तबाजी फरीसियों की तरह महज दिखावा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चाई और खलूस से भरपूर हो। वरना हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। क्या आपको गुज़िश्ता सबक के वाकयात याद हैं? यसू ने फरीसियों को डांटा था क्योंकि वो जुबानी जमा खर्च तो बहुत करते मगर अमल से कतराते थे, और अगर कुछ करते भी तो दिखावे के तौर पर, ताकि सभी उनकी शान में कसीदे पढ़ते रहें। फरीसी जाहिर में तो बड़े पारसा लगते मगर उनके दिल हर तरह की अय्यारियों और शैतानी सोचों से भरे रहते। इसीलिए यसू चाहता है कि हमारे आमालो किरदार फरीसियों से जुदा, खालिस और मिसाली हो और इंसान से तारीफ व तौसीफ सुनने के मोहताज ना हो। आसमानी बाप के बेटे बेटियां कहलाने के लिए हमें ऐसे उम्दा इखलाको किरदार की तलब रखनी होगी ताकि हम भी बाप की सल्तनत में दाखिल हो सकें। नमक और रोशनी की खसूसियात पाने के अलावा यसू हमारे किरदार में और कौन सी खूबियाँ देखनी चाहता है? तर्जे अमल की तरबियत, फलदार दरख्त। तब यसू ने एक और तमसील सुनाई। लूका 13:6-9 आए। फिर उसने ये तमसील कही कि
किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। बच्चों, यसू ने एक ऐसे आदमी का किस्सा सुनाया जिसने अंजीर का दरख्त लगाया, मगर 3 बरस इंतजार के बाद भी उसमें कोई फल ना लगा। जमीन के मालिक ने सोचा, क्यों ना ऐसे बेकार दरख्त को काट फेंका जाए, ताकि जो जमीन इसने रोक रखी है वहाँ कोई और दरख्त लगाया जाए जो फल दे सके। मगर बाग के रखवाले ने उस दरख्त को एक और मौका देने की सिफारिश करते हुए कहा, दरख्त को एक मौका और दिया जाए, इसकी देखभाल की जाए और अगर फिर भी इसमें फल ना आए तब इसे काट कर फेंक दिया जाए। बच्चों, इस कहावत के क्या मानी हुए? यानी बहुत से लोगों ने बाइबल की बहुत सी तालीम पाई, यसू के बहुत से निशान और अजायब देखे, फिर भी अपने तर्ज अमल में टस से मस नहीं हुए, अपनी इस्लाह नहीं की, उनमें नमक या रोशनी की खुसूसियात बेदार ना हुई और इंजीर के उस दरख्त की तरह बेसमर रहे। यसू ने उन्हें मजीद मौका तो दे दिया, मगर जिन लोगों की साबका रवश बरकरार रहेगी और अपनी जिंदगी में खुदा के जाहो जलाल की गवाही न बन सकेंगे, दूसरों के लिए अच्छी मिसाल न बन सकेंगे, तो उस बेसमर दरख्त की मिसाल हो जाएंगे, तब उन्हें काट गिराया जाएगा, यानी जहन्नुम की पस्तियों में ला फेंका जाएगा। बच्चों, अगरचे यसू हमारे लिए रहम का बहरे बेकरां है और हमारे आसमानी बाप ने हमारे लिए दुनिया की तख्लीक से भी पहले गुनाहों से नजात का इंतजाम भी कर रखा है, मगर यसू की तरफ से अदालत भी अटल है। बच्चों, यसू की सख्त तंबीह में भी मोहब्बत झलकती है। ये बिल्कुल माँ बाप की तंबीह की तरह ही है। जैसे वो लापरवाही से सड़क पार करते बच्चों से कहते हैं, रुको, संभलो, देखो कहीं किसी तेज रफ्तार कार की लपेट में ना आ जाना। या छत पे खेलते हुए बच्चों की तंबीह के लिए कहते हैं, देखो संभल के, कहीं गिर ना जाना, गिरे तो मर जाओगे या टांग तुड़वा बैठोगे। ये अल्फाज कोई खुशगवार तासर तो नहीं देते। हो सकता है वालिदैन के ऐसे रवैया से लगे उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं है, मगर यही तो वालिदैन की असल मोहब्बत है, क्योंकि उन्हें ये गवारा नहीं होता कि उनका बच्चा कार तले कुचला जाए या बेखबरी में जान गंवा बैठे। यसू की तरफ से की जाने वाली तंबीह में भी यही मोहब्बत झलकती है। जब उसने जिनके लिए जान दी थी उन्हें बताया कि बदी की राहें जहन्नम में लापटकेंगी, तो उसे यही खदशा था कहीं बुरा वक्त हम पे ना आ पड़े। यसू हमें जहन्नुम की सजा से बचाना चाहता है। बच्चों, यसू ने हमें जिंदगी में कैसे अंदाजो अतवार अपनाने की तलकीन की? नंबर 1, नमक की सुलझू फितरत, नंबर 2, तर्ज़े अमल में दूसरों के लिए रोशनी, नंबर 3, अच्छे अंदाजो अतवार और अच्छा फल। आए दुआ करें। प्यारे
प्यारे आसमानी बाप, यसू ने हमें नमक की खुसूसियात अपनाने की तलकीन की ताकि हम दूसरों को अपनी खुशगवार बातों से मसरूर करें, बाहम रूठे हुओं को फिर से मिला दें, उनमें सुलह करा दें। प्यारे बाप, मुझे तेरी इस अनायत की सख्त जरूरत है। मैं अमूमन दूसरों के मजाज को खातिर ही में नहीं लाता, उनकी खुशियों की परवाह तक नहीं करता। कभी कभी तो उन्हें तैश दिलाने को चढ़ाता खपाता भी हूँ, क्योंकि जब अपने हालात में बेजार होता हूँ तो दूसरों की खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। प्यारे बाप, मेहरबानी फरमा, मेरा गुनाह बख्श दे, मेरा बिगड़ा किरदार संवार दे कि दूसरे मुझसे मुतासिर होकर मिल बैठे। जहाँ कहीं भी जाऊं सबको खुशियों के पैगाम सुनाऊं, सबके होंठों पे मुस्कुराहट लौट आए, सभी शादमान हो जाएं। प्यारे बाप, यसू ने हमें बताया है तेरी शान सब पे जाहिर करने, उन्हें तेरे पास लाने को अच्छे तौर तरीके अपनाने होंगे, तारीकी में रोशन चिराग बनना होगा। मगर ए बाप, मैं तो बदमिजाज बच्चा हूँ, मैं इस काबिल कहाँ कि कोई अच्छाई करूँ या किसी की कोई मदद ही कर पाऊँ। मुझे जरा सी कोफत हो, लड़ाई बढ़ाई में कूद पड़ता हूँ, कोई जरा सी ज्यादती कर ले, बढ़ चढ़ के बदला लिए बिना चैन नहीं पाता। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दे लूं, दिल में यही सोच रहती है, दूसरे मुझे आसान हदफ समझ लेंगे। प्यारे बाप, मेरा ख्याल था एक हीरो पर ज्यादती करके कोई जाए कहाँ, क्या मैंने गलत कहा? प्यारे बाप, यसू का पैगाम तो सबसे जुदा है, कभी तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती, आखिर करूं क्या? यसू की राहें चुन लूं तब डरता हूँ, सब कहेंगे देखो ये डरपोक बच्चा, चलो इसे मारे। और अगर यसू की नसीहत ना मानी, जहन्नुम मेरा ठिकाना होगी। प्यारे बाप, ये उलझन सुलझती ही नहीं, मेहरबानी से मेरा दिल हिकमत से रोशन कर दे, जीने के अंदाज सिखा दे, अपने अंदाज सिखा दे, यसू को राजी कर लूं, निगाहों की हकारत से लापरवाह होकर तेरी शान दुनिया को बता दूं। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा, मुझे वफाओं का खालिस नमक चिरागे रोशन बना दे, यसू के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। लूका 18 बाब 1 आयत।